السلام علیکم ناظرین، وطن کی آواز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد اظہار۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ مغل پورہ اردو گھر میں اردو کانفرنس اور اردو زبان والوں کو روزگار سے جوڑنے۔ تلنگانہ اردو فورم، مظہر ایجوکیشنل سوسائٹی، ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے اردو گھر مغل پورے میں اردو کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کے خصوصی مہمان ڈاکٹر سدھا جین، انڈیا پیسیفک، محمد ناظم علی، پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد، ایچ مسکان خان، ورکنگ پریزیڈنٹ تلنگانہ محمد بشیر علی، وائس پریزیڈنٹ کاروان اردو ڈاکٹر ایس اے مجید، سینئر فزیشین پیٹرن پیس کمیٹی ایکس ممبر MDF سوشل ورکر۔ اس اردو کانفرنس کی صدارت عبدالرب انصاری، صدر تلنگانہ اردو فورم نے کی۔ اس موقع پر سبھی شرکا نے اردو زبان سے تعلیم حاصل کرنے والوں کو روزگار سے مربوط کرے تاکہ اردو پڑھنے والے روزگار حاصل کریں۔ تاج محل جتنا خوبصورت ہے ہم ایک بار جا کے شاید اسے دیکھ پائیں، پر انصاری جی کے شبدوں کا جو محل ہے نہ جانے کتنی بار میں اسے سنتی ہوں، اور ان کے اسپیچز کو بھی کئی بار میں واپس سے سنتی ہوں، کیونکہ شبدوں کا ہی سب کھیل، بھاشا کا ہی سب جوڑ ہے، یہ ماننا بہت صحیح ہے۔ آج میں زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ لوگوں کا، اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہاں، میں پچھلی بار بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر اردو کو امپلائمنٹ سے جوڑ دیا جائے، اگر اردو کے اندر پیٹ بھرنے کی طاقت آ جائے تو بھاشا کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، جہاں پر آپ کو نام یا آپ کا پیٹ بھر رہا ہے وہ چیز کوئی نہیں ہٹا سکتا، بہت چھوٹی چیز ہے۔ میں آج آپ کو ایک اپنا 2 مہینے پہلے کا قصہ سناتی ہوں۔ ابروڈ کا ایک چھوٹا سا ٹرپ تھا، اور وہاں پہ میں نے کیا نوٹس کیا کہ کافی لوگ گھومنے جاتے ہیں، کافی لوگ جو ہے اپنے پروجیکٹ کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کیسے اپنا امپلائمنٹ کھڑا کر سکتے کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اگر آپ اپنے گھر سے باہر گھومنے جاتے ہیں تو میں بتاتی ہوں آپ کو۔ ہمارے ایک بہت ہی نون پرسن ہیں جنہوں نے ہندی میں PhD کر رکھی ہے، ٹھیک ہے، کافی سمے پہلے کی انہوں نے شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایسے مقام پر آ گئے کہ انہوں نے اپنے گھومنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک ابراڈ کا کوئی ڈیسٹینیشن ڈھونڈا، اور وہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ CBSE جو کورس ہوتا ہے ہر جگہ ہے، تو وہاں سے بھی تو بچے CBSE انرول کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ہندی یا پھر کوئی اور ریجنل لینگویج، رائٹ۔ جن لوگوں نے ہندی لے رکھی ہے اس کی ٹیوشن کہاں پڑھیں گے؟ مشکل ہے نا، جیسے اردو کی ٹیوشن کہاں پڑھیں گے، رائٹ۔ آج کی ڈیٹ میں وہ لیڈی یوروپ کے 800 بچوں کو آن لائن ٹیوشن پڑھاتی ہے 9 گروپس کے اندر، الگ الگ 6 o'clock سے 9 o'clock ایوننگ میں ان کی کلاسز ہوتی ہیں، اور وہ اپنے گھر بیٹھ کر وہ کلاسز ہندی کی لیتی ہے، وہاں پہ وہ ارن کر رہی ہے، انہوں نے جس میں PhD کی ہے اس کو واپس سے جی رہی ہے، اور جن بچوں کو ٹیچر کی ضرورت ہے وہاں پر سے امپلائمنٹ کھینچ کر لے کر آئی ہے، رائٹ۔ ہندوستان کو ہر لمحہ ایک طاقت دی ہے، ایک توانائی دی ہے، ایک قوت دی ہے، ایک انقلاب دیا ہے۔ کروڑوں ہندوستانیوں کے ذہنوں میں جو خود جناب خودداری کے ایک جذبے کو پیدا کیا ہے۔ اردو کے آرٹیکل تھے جنہوں نے عوام الناس کو یہ بتایا کہ انگریزوں کی غلامی اب ہمیں منظور نہیں ہے، ہم
आजाद फिजाओं में रहना चाहते हैं। मोहम्मद अली जौहर से जब कहा गया कि आपकी तबीयत खराब है, अगर कुछ हुआ तो आप बाहर थे, क्या आपको यहाँ, उन्होंने कहा कि मैं गुलाम सरजमीन दफन होना नहीं चाहता, तो हम ही जिम्मेदार हैं इसके। तो मैं ये कहते हुए आप लोग ये बोलना चाहता हूँ कि उर्दू के लिए जो गवर्नमेंट हुकूमत से भी हम जो नुमाइंदगी करते रहे हैं, जैसे हमारे सदर जलसा इस्माइल अंसारी, उर्दू अंसारी साहब ने जो ज़माने से तहरीक चलाते हैं उर्दू के खातिर, जो से उनके साथ उनकी टीम भी जो तहरीक राइट से मैं तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और हाल ही में ARS ज्वाइन करी हूँ। आप सबका पढ़ने का एक मौका दे। उर्दू ऐसी चीज़ है, एक माँ का आंचल है जिसमें तहजीब, तरबियत, मिठास सब कुछ मौजूद है। जो उसी के नाम के साथ उसी की पहली ज़बान उर्दू की जद्दोजहद के लिए हम सब आज यहाँ जमा हैं। सबसे पहले मैं शेर नसीम पे जलवा अफरोज तमाम इंसान अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया, वो सबसे पहले उर्दू ही पर जब वो लिखा तो सबसे पहले उर्दू का ही लफ्ज अलीफ लिखा। तो उर्दू की ज़बान इस सरज़मीन पर जब से इंसान आया है उस वक्त से ये उर्दू ज़बान जन्म ली है और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक कायम रहेगी। आवाम के हालात से वाक़िफ़ियत हासिल करने के लिए निकला करते थे रात के मौके पर। एक मरतबा देखिए शहर से बाहर एक खैमा लगा हुआ है और करीब पहुँचे तो देखिए कि एक खातून है और छोटे से बच्चे हैं और एक चूल्हा जल रहा है और बच्चे रो रहे थे। और खातून से सलाम अर्ज़ करके पूछने लगे कि क्या बात है, क्या वजह है। बेचैनी रखने वालों का एक मजमा है यहाँ पर और शाह नसीम पे जो है बड़े बड़े उर्दू अदब के जो है क्या बोलूँ दिलदारा लोग यहाँ मौजूद हैं। उनके दरमियान में मैं आपसे कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, मगर इतना है कि मैं इसी अलीजा कोटले के महल्ले का हूँ। BRS लीडर और सदर नशीन तेलंगाना उर्दू फोरम मज़हर एजुकेशन सोसाइटी अल्लाह ताला के फज़ल और करम ख़ास से अरसे दराज से उर्दू ज़बान की फ़लाह और बहबूद के लिए, उर्दू ज़बान को परवान चढ़ाने के लिए, नौनिहालों के हाथों में उर्दू का कलम थमाने के लिए और हमारी माँ बहनों से हम इस बात की दर्दमंदाना अपील करते हैं, इल्तिजा करते हैं, समाजत करते हैं, गुजारिश करते हैं कि खुदारा तमाम नई नस्ल उर्दू से दूरी अख्तियार करते जा रही है। तो ये माओं की ज़िम्मेदारी है कि आप नौने वालों के हाथों में उर्दू का कलम सिखाइए, उर्दू के रस्मुल ख़त को ज़िंदा रखिए, उन्हें कम से कम ख़त लिखने के काबिल सिखाइए। हुकूमत तो अपनी जानिब से जो भी हुआ करती है, लेकिन वो कौमें ज़िंदा रहते हैं जिनकी ज़बान ज़िंदा रहती हैं, वो लोग ज़िंदा रहते हैं जिनकी ज़बानें ज़िंदा रहती हैं। उन्हीं की अज़मत होती है जिनकी ज़बान का वक़ार होता है, जिनकी ज़बान की बुलंदी होती है। उर्दू एक सेकुलर ज़बान है। ये उर्दू ज़बान महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, इमाम अली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़बान है, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना यह है कि ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा दिया था। आज उर्दू की जानिब से, उर्दू की बदौलत हिंदुस्तान को आज़ादी का सूरज तुलू हुआ। आज उर्दू बहुत ही खस्ता हालत में है। उर्दू मीडियम के बच्चों के स्कॉलरशिप रोक दिए गए हैं। उर्दू एकेडमी की जानिब से 500 उर्दू मीडियम के स्कूल कायम किए गए थे, आज जो स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बिलखुसूस पुराने शहर की क़यादत करने वाली मोहतरमा कौसर जहाँ साहबा, मोहतरमा मुस्कान खान साहबा जो BRS की एक डायनेमिक लीडर हैं, और फैयाज साहब
डॉक्टर एस.एम. हाजी साहब, मोहम्मद बशीर साहब, मोहम्मद फेरोज़ अहमद साहब, मोहम्मद अहमद साहब, मोहम्मद मसूद अली साहब, साजिद बिन अब्दुल अजीज़, तमाम साथियों से मैं इस बात की गुजारिश करूँगा कि देखिए हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है। हम जाएं उन ओहदेदारों से, वो सरबर आला जो हुकूमत की आला कुर्सियों पे फायज हैं, उनसे इस बात का मतालबा करें और अपने मतालबे को अमली जमा पहनाएं कि उर्दू मीडियम के बच्चों को दोबारा स्कॉलरशिप जारी की जाए, उर्दू मीडियम मदारस की जो खस्ता हालत है उसको दुरुस्त किया जाए। और रही बात साइंस के टीचर्स कम हैं, मैथमेटिक्स के टीचर कम हैं, उनको भी जनाब जो पूरा किया जाए। टिमरिस जो कायम किया गया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब और KTR साहब, आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, ईश्वर साहब जो ऑनरेबल जनाब जो मैटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इनसे भी हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि साहब करोड़ों रुपए की आप लोग इमारतें तामीर कर रहे हैं, बिल्डिंगें तामीर कर रहे हैं, लेकिन जब तक के मासूम बच्चों को बुनियादी सहूलतें नहीं मिलेंगी, सरपरस्त कैसा आपके मदारस में जनाब जो है दाखिला दिलाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि उर्दू मीडियम के लिए तमाम सहूलतें दी जाए। और आज की उर्दू कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि उर्दू को रोज़गार की ज़बान बनाया जाए, उर्दू के हल तलब मसाइल को हल किया जाए, तमाम दफ्तरों के अंदर उर्दू की दरख्वास्तों को कबूल किया जाए, जितने भी फ़ैसले हों उनकी कापी जनाब जो मुतलकीन को उर्दू ज़बान में दी जाए। और उर्दू के ताल्लुक़ से बाज़ ओहदेदार जो फ़िरक़ा परस्ती के ऐनक लगाए हुए हैं, उनको चाहिए कि इस सेकुलर ज़बान के लिए फ़िरक़ा परस्ती के ऐनक को निकाल के वो सेकुलरिज़म की ऐनक लगाएं। उर्दू ज़बान से मुसलमानों का कोई मसला नहीं है, मुसलमानों की असली ज़बान अरबी है, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, तमाम इस्लामिक लिटरेचर उर्दू ज़बान में है। 2023 के अंदर इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद एस.एम. हाजी साहब, मोहम्मद बशीर साहब, सुधा जैन मैडम साहबा, मोहतरमा मुस्कान खान, मोहतरमा कौसर साहबा, फैसल साहब जो हमारे रियासत अंदर ताल्लुक़ रखते हैं, BRS के बहुत ही यंग पावरफुल लीडर हैं, तमाम क़ुव्वत जमा करके हम इंशाअल्लाह ताला तारीख़ी चारमीनार के पास जश्न उर्दू बनाएंगे और उसके अंदर जितने भी जनाब जो उर्दू के हल तलब मसाइल हैं उनको पेश किया जाएगा। अब मैं मोहम्मद शफीउल्लाह साहब का, लियाकत अली साहब का और मोहम्मद शफीउल्लाह साहब IFS सेक्रेटरी जनाब जो रेजिडेंशियल स्कूल्स का, जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद लियाकत साहब का, लतीफ़ साहब का, बरकत मैडम का और DMW साहब का, जितने भी महबान उर्दू यहाँ पर आए हैं, दिल की गहराइयों से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बड़ी हिम्मत, अज़्म और हौसले के साथ हमारा कारवां रहेगा। अल्लाह जिसकी मदद करे उसको कोई नहीं रोक सकता। हम अल्लाह से दुआ गए, मालिक तू ज़मीन या अल्लाह तू ज़मीन और आसमान में तेरी हुकूमत है, तेरी बादशाहत है, तेरी सल्तनत है, तेरा ही हुक्म माना जाता है, तेरी बात मानी जाती है। अल्लाह उर्दू के चमन को बाहरों से लबरेज रख, अल्लाह उर्दू के परचम को हमेशा बुलंद रख, अल्लाह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको उर्दू पढ़ने की तौफीक अता फरमा और उर्दू के मुस्तकबिल को रोशन रख, ताबनाक रख, मुनव्वर रख। तेरे दस्ते कुदरत के अंदर है तमाम चीज़ें, हम तुझी से फरियाद करते हैं इस मज़लूम ज़बान का तू महफ़िज़ बन जा। जो लोग भी इस ज़बान के लिए जिद्दत कर रहे हैं अल्लाह तो उनकी जान माल का, उनके ईमान का, उनकी सलामती का, हर चीज़ का तू महफ़िज़ बन जा। अपने फ़रिश्तों के ज़रिए तो हमारी मदद फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय हिंद। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, फिर मिलते हैं वतन की आवाज़ की अगले ख़बरनामे में।